So I'm going to share the screen with you. From the sketch, I'm going to start with the concept of algorithms, right? Then the first thing is that comes to you is that why we are need of an algorithm and what an algorithm is. In chapter number 9, when we have started the concept of algorithm, so we says that an algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. When you are going to solve any problem and you are going to write the solution of it, so whatever the solution that you write in terms of step-by-step procedure, that is called the algorithm. Could you see the screen that I have shared in front of you? Now you could see that there's a definition that is for the pseudocode. Here you need to understand the difference between a pseudocode and an algorithm. Whenever you are writing your solution in using the English language statement, here you can see that this is basically a pseudocode for the alarm app, right? So your alarm will continue to ring for 10 seconds until, like for example, if you are going to set the alarm, so what will happen that you are going to set a time. So first you are going to set a time, and that time which you have set is going to be checked with the one that is the current one. For example, current time is 20 past 10 and I'm going to set the alarm for, let's suppose, 11 o'clock. So what will happen that every 10 seconds my current time is going to be checked with the time set in the alarm. So when both the times are going to be matched, then the alarm will ring. So here you can see that I have written this, that here the solution is written using English language statement. So this is what the pseudocode is. And the definition also says that okay, when you are writing something using English language words, so that is called the pseudocode. So if I share a screen with you, I'm sharing another screen with you, because first the objective is to make sure that the difference between a pseudocode algorithm and the coding. Here in your code, these two terms, algorithm and pseudocode, are basically a similar type of thing. But when you are going in the A levels, so you will see that these are different things. But in O levels, it's been taught to you as these are the similar things. I'm sharing with you an example of it. Now from here you can see अब मेरे पास यहाँ पे मैं आपको एक definition from the simple definition that we started, okay, what a pseudocode is and what algorithm is and what is the code or a programming language. So from here you can see that what is the simplest program that you have done. एक आसान से आसान तरीन प्रोग्राम आपको कौन सा कराया गया है जो आपसे कोड कहा गया वो लिखने के लिए. What is that one? Yes, anyone else? सबसे आसान तरीन प्रोग्राम सूडो कोड में हमने कौन सा वाला किया है या आपने कौन सा किया है? A very simple question that you solve using the algorithm. What is the objective of it? Anam, Ikra, Kashish, Maha, Malik, Inshal. Yes, Safi, Sneha, Taha, Wasi. What is the simplest program that you have done for the algorithm? Adding of two number, exactly.
फॉर द एडिंग ऑफ टू नंबर आप क्या कर रहे होते हो, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक यू कुड सी इन सूडो कोड। सो आप कह सकते हो कि इनपुट फर्स्ट नंबर, you could say input second number, then you can say add first and second number together, and third you can say is output the answer। ये चीजें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो when you are going to add up two numbers। तो अब ये तो आपने सूडो कोड कहा कि भाई सूडो कोड के अंदर आपने बता दिया कि आपने पहले दो नंबर लेने हैं, दो नंबर लेने के बाद आपने उन दोनों नंबर का सम करना है, उन दोनों का सम करने के बाद इनका आउटपुट आपने देना है। सो ये तो एक वे हो गया आपका। व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द एल्गोरिथम? अब इसका एल्गोरिथम हम कैसे लिख सकते हैं? हु इज गोइंग टू टेल? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि इसी चीज को अगर मैं एल्गोरिथम में करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? सब जाग रहे हैं ना भाई, सो तो नहीं रहे। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। ये चीजें ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर क्लास इज गोइंग टू काउंट। योर पार्टिसिपेशन, योर होम असाइनमेंट, योर रिस्पॉन्सेज, ईच एंड एवरीथिंग। तो एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं हम इसका? सूडो कोड तो आसानी से सामने लिखा हुआ है ना, जैसे सफ़ी ने बताया। अब हम इसका एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं? यस रायन, इसका द सूडो कोड दैट यू कुड सी ऑन द फर्स्ट कॉलम, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दिस वन टू द एल्गोरिथम। इसको एल्गोरिथमिक फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं? सर को एग्जाम्पल देनी है कोड की। जो सूडो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड, इसको हम एल्गोरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लाइक यूजिंग द वेरिएबल, हम वेरिएबल का यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ताहा ने लिखा ना इनपुट नंबर वन, वेरी गुड। इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम। काम एक ही हो रहा है, जैसे वहां ऑन द लेफ्ट साइड सूडो कोड आप लिख रहे हो, बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ वेरिएबल हेयर। अब आप यहाँ पे ए ले लो, N1 ले लो, N2 ले लो, इट्स अप टू यू। तो आपने एक चीज तो इनपुट ए ले ली, एक आप इनपुट बी ले लो। ऑन द थर्ड लाइन यू कैन राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑन द फोर्थ लाइन यू कैन राइट आउटपुट और प्रिंट। यहाँ पर आप प्रिंट कर दो इसको, प्रिंट सी। सो यही सेम काम जो आपका सूडो कोड में वहां हो रहा है, द सेम वर्क यू हैव दैट इन द एल्गोरिथम। तो यही सेम काम आपका एल्गोरिथम में हो गया। आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू कुड राइट द समथिंग इन सूडो कोड एंड समथिंग इन द एल्गोरिथमिक वे। एल्गोरिथम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सूडो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। मैं इस चीज का डिफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? सब बताओ पहले कि समझ में आई नहीं आई। जिसको नहीं आई बताओ तो मैं दोबारा से बता दूं। ठीक है, बाकी जिसे नहीं आया वो बताए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिकॉज द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू डू इज कि अब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा। अब प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता हूँ। आपके पास जो सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपलेस्ट, वो है आपके पास बेसिक। अब मैं अगर इसको इसी चीज़ को करने के लिए जाता हूँ टुवर्ड्स दी बेसिक, आप सिंपल गूगल पे जाके पीसी बेसिक या जीडब्ल्यू बेसिक लिख सकते हो, तो आपको वो मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अगर पीसी बेसिक खोलूँ, मेरे इट इज, कहाँ चली गई? बेसिक इज हेयर। तो मैं यहाँ से बेसिक की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपके सामने आ रही होगी वो फुली बेसिक की स्क्रीन आई है? बेसिक आ रहा है आप लोगों के सामने?
जी सर, आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अब इसी सेम चीज़ को हमने इन टर्म्स ऑफ कोडिंग करना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप कोडिंग के लिए जाते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जो भी ग्रामर लैंग्वेज यूज करते हैं उसकी ग्रामर होती है। तो यहाँ पर हमें पीसी बेसिक के लिए इसके रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स सिंपल ये कहते हैं कि आपने लाइन नंबर लिखना है। तो मैंने लाइन नंबर के लिए 10 लिखा। सवाल आ सकता है सर 10 ही क्यों लिखें, 1 2 3 क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन जो पूरी कॉमनली जो सिंटेक्स इस्तेमाल होता है बेसिक में काम करने का, वो 10 20 30 ही होता है। आप 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। अब मैं ऑल्टर आई शॉर्टकट होता है इनपुट के लिए, मैं इनपुट वैसे भी लिख सकता हूँ और ऑल्टर आई प्रेस करूंगा तो इनपुट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। तो भाई पहला नंबर बताओ। दैट फर्स्ट नंबर इज एन। N1 कह दो या एन कह लो या ए कह लो, जो भी मर्जी। चलो हमने ए इस्तेमाल किया है, हम ए लिख लेते हैं। एक बात का ख्याल रखना, मैं एरो से ऊपर गया, मैंने ए लिखा। अब मैं इंटर करके नीचे आऊंगा तो ही ये लाइन चलेगी। अगर मैं एरो से नीचे आ गया ना तो बाद में आउटपुट आएगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करेगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू फिनिश अ लाइन यू हैव टू पुट एन इंटर। अब मैं दोबारा ऑल्टर आई करता हूँ, दैट इज द इनपुट, और मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर। ये सेकेंड नंबर आ गया। और ऊपर फिर मैं दोबारा बी लगाना भूल गया। अब आई एम गोइंग टू राइट बी। अब मैंने ऊपर बी लगाया। अब मैं एंटर प्रेस करके नीचे आऊंगा तभी बात बनेगी। अगर मैं एरो से नीचे आता तो आउटपुट, फिर जब मैं एग्जीक्यूट करता ना प्रोग्राम, तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलता। नाउ हियर यू कैन सी दैट इट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड द फोर्थ line is print. Okay, and in the print I'm going to write result is, और मैं इसको सी कह रहा हूँ। अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब अगला काम क्या करना है, आई हैव रिटन अ प्रोग्राम, आई हैव टू एग्जीक्यूट इट। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, इधर आई कैन प्रेस F2। F2 से प्रोग्राम चलता है। देखो अगर नीचे यहाँ देखो सबसे नीचे, यहाँ 2 के साथ रन लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें F1 F2 F3 के फंक्शन है। अगर आप F1 दबाओगे लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट का मतलब आपका प्रोग्राम पूरा आ जाएगा। F2 का मतलब रन होगा, F3 का मतलब लोड होगा। लोड उसी वक्त होगा जब आपने कोई पीछे प्रोग्राम सेव किया होगा, और F4 से आप सेव करते हो अपने प्रोग्राम को। सो वंस आई प्रेस F2 तो मेरा प्रोग्राम चला और मुझसे उसने पूछा पहला नंबर बताएं। मैंने 45 लिख दिया। मैंने दूसरा नंबर बताएं, मैंने 35 लिख दिया। नाउ इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट इज 80। तो मेरे दोनों नंबर यहाँ पर ऐड हो गए। ये मैंने एक प्रोग्राम बना के प्रोग्राम चला दिया। इनिशियली आज अभी से 5 से 8 मिनट पहले मैं इसी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिख रहा था। हम एल्गोरिथम उस वक्त लिखते हैं व्हेन वी वांट टू राइट अ सॉल्यूशन इन अ कैजुअल वे, या फिर हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हम पहला जो इंस्टेंट सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो हम सूडो कोड में ही लिखते हैं। सूडो कोड या एल्गोरिथम जो हम सबसे पहले लिखते हैं, उसको फिर हम बाद में कन्वर्ट करते हैं टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ तक जितनी बातें बताई आप में सबको समझ में आई ये बातें? रेयान, हमारे पास जो टॉपिक रह जाता है वो रह जाएगा एरेज का। ठीक है। तो जो मेरी बात हुई थी अपने पेयर टीचर से, तो एरेज हमने रखा था बात के लिए, क्योंकि बच्चों को इनिशियली मसला आ रहा था एल्गोरिथम्स के अंदर। तो फिर इसीलिए जो है फिर मैं एल्गोरिथम से ही बात करूंगा। अगर बीच में मुझे अच्छा रिस्पांस मिल जाता है 3 4 5 क्लासेस के बाद कि आप एल्गोरिथम्स में प्रॉपर आ चुके हो, तो फिर एरेज का टॉपिक आई थिंक 2 से 3 क्लासों में आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपका प्री रिलीज वैसे ही आना है इन जनवरी। ठीक है ना? तो उससे पहले तक हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो आखिरी की क्लासेस आपकी दिसंबर वाली आ रही हों उसके अंदर आप एरेज को थोड़ा सा पढ़ के रखें, ताकि जैसे ही आपका प्री रिलीज आ जाए हम आपकी प्री रिलीज के अकॉर्डिंगली एरेज को वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकें। ये वाली बात यहाँ तक सबको समझ में आ जाती है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये मोहम्मद मसूद कौन है भाई? पूरा नाम क्या है? सारिम। ठीक है। नाउ अब इसके बाद अब हम अगली आगे की तरफ बढ़ते हैं।
जो इनिशियल कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कोई बताएगा वेरिएबल क्या होता है? जैसे आपके सामने यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें से वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, क्योंकि ये चीजें आती हैं। सीक्वेंस क्या है, सिलेक्शन क्या है, बिकॉज ये चीजें पेपर में आती हैं, इसलिए मैं देन एंड देयर यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ इन चीजों को। आपके पास राइटिंग मटेरियल होना चाहिए सो दैट यू आर गोइंग टू राइट इट। मुझे ये बताओ यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज होती है आपके प्रोग्रामिंग में, एल्गोरिथम में, व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम, सो वहां पर वेरिएबल क्या चीज होती है? सर वेरिएबल वो होता है सर जो प्रोग्रामिंग की रनिंग के दौरान चेंज हो जाए, मतलब वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उसकी, जैसे इसमें है ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो हम उसकी वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो इनपुट ए है, जो इनपुट बी है, ये दोनों वेरिएबल हैं आपके। ठीक है ना, बिकॉज ए बी मैंने फर्स्ट टाइम चलाया तो मैंने यहाँ पर दिया 45 35। अब मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा हूँ अब मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको 34 भी दे सकता हूँ और 98 भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू चेंज हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट मुख्तलिफ आ रहा है। कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है? रयान के अलावा कोई और बताए। कांस्टेंट क्या होगा? वेरिएबल का कुछ अपोजिट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये अपने पास आप लिख लो। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैं चैट बॉक्स पे भी लिख देता हूँ। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, कांस्टेंट वेरी नहीं करता, ठीक है, स्नेहा ने कहा। तो अब वहां पे क्या होता है कि कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज, अच्छा वेरिएबल में आप एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। अब आप कुछ भी डाल सकते हो, आप लिख सकते हो ए, और ए के अंदर आपने उठा के डाल दिया 5, ये वेरी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डेज इन अ मंथ, ये भी वेरी करते हैं, आप इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी के अंदर वो 28 भी हो जाते हैं। ठीक है ना, मार्च के अंदर 31, आई थिंक 31 हो जाते हैं, और फिर अप्रैल में 30 तक चले जाते हैं। तो वेरिएबल की एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद अगली चीज जो बताई थी, तो आप ये लिखते हो कांस्टेंट इज अ वैल्यू। कांस्टेंट इज अ वैल्यू। मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ये आप अपने पास राइटिंग मटेरियल में लिखो। आपकी कॉपी पे ये सब चीजें होनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में विद द डेट। ये चीजें आपके काम आएंगी। अगर आप यहाँ से मेरी हेल्प नहीं करोगे अपने काम से, तो फिर मैं आगे आपको कहीं पे भी ग्रेडिंग नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको ग्रेडिंग उस वक्त दूंगा जब आपकी सारी चीजें मेरे पास होंगी। व्हेन आई एम गोइंग टू ग्रेड यू, तो मैं आपका राइटिंग मटेरियल, आपकी कॉपी लूंगा। तो आपकी कॉपी में अगर आपका काम वेल मेंटेन्ड है, आप सारी चीजें कर रहे हो, उसी बेस पे मैं आपको अच्छा ग्रेड ग्रेड प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, या जो भी सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस, जो आपका राइटिंग मटेरियल है, या असाइनमेंट, असाइनमेंट हर क्लास में आपको मिलेगा, वो आपने देना है। ये चीजें दोगे तो ही आपके पास अच्छा आप कुछ कर पाओगे। कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। कैसे नहीं होती? हम यहाँ पे जाते हैं। अब मैं वही बता रहा था ना कि यहाँ पर हमने बेसिक में एक काम किया, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। देखो मैंने F4 का बटन दबाया, सेव आ गया। सेव के नाम से मैंने ADD लिखा और एंटर कर दिया, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू। न्यू का काम होता है, न्यू आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करता है। मैं CLS लिखता हूँ। क्लियर लॉजिकल स्क्रीन, मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं F1 का बटन दबाऊंगा और एंटर करूंगा। एक सेकंड, बल्कि नहीं सॉरी, मैं F3 का बटन दबाऊंगा और ADD के नाम से मेरा प्रोग्राम था, ओके करूंगा तो मेरा प्रोग्राम लोड हो गया। लोड ADD, मैंने सेव किया था ADD के नाम से। लोड करने का मतलब है अब इसने मेमोरी में प्रोग्राम को लोड कर दिया। F1 का बटन दबाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम वापस आ गया। तो एक तो ये होता है कि आप जो प्रोग्राम अपना
सेव करते हो वो आप इस तरह से वापस ला सकते हो. नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस वन. Now, I am going to start a new algorithm which demonstrate the concept of constant. कि constant क्या है उसके बारे में बताएगा. What is that constant? Constant क्या कह रहा है? Constant ये कहेगा जैसे अब हम कहते हैं ना भाई the value for speed of light ये constant value है. The value of pi ये एक constant value है. या फिर मैं कहूँ कि भाई days in a week ये तो constant है ना. 7 days in a week तो होते ही हैं. ये तो change नहीं होते. तो और इसी तरह डेज इन अ ईयर अब मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं दैट टेक्स योर एज इन ईयर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स. वो आपकी एज को ईयर्स में लेगा और मंथ में कन्वर्ट करेगा. तो मुझे ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट प्रोग्राम. इनपुट योर एज इन ईयर्स एंड कन्वर्ट इट इन डेज. एज डालेगा इन ईयर्स में और कन्वर्ट करेगा इन डेज में. कैसे करेंगे इसको? हाँ, रिपीट आई एम रिपीटिंग दिस दैट आपने एक प्रोग्राम बनाना है दैट इनपुट योर एज इन ईयर्स एंड कन्वर्ट इन टू डेज. इन टू डेज TW वाला नहीं है ये. हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? देखो एल्गोरिथम हम लोगों को तभी समझ में आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करोगे. आपको नहीं समझ में आ रहा है आप गलत आंसर दो, नो इशू, बट एटलीस्ट स्पीक. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बच्चे मौजूद हैं और रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आ रहा है. हाँ या ना गलत कुछ भी आना चाहिए. एवरीवन शुड टाइप और स्पीक. 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इन ईयर्स एंड कन्वर्ट इनटू डेज. ईयर में डाल रहे हो और डेज में निकालोगे तो फिर मल्टीप्लाई होगा ना 360 से. ठीक है ना. तो सारिम ने लिखा इनपुट एज एंड देन एज को मल्टीप्लाई बाय 365 से करा देंगे. वेरी गुड. तो फिर इसमें इस तरह से किया जाएगा दैट आई एम गोइंग टू राइट इनपुट. और अच्छा अगर मैं लेट सपोज चलो मैं एक काम अभी पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं. इनपुट एज 20 और आपने डेज में बताना है तो आप डेज ले लो और एज ले लो और मल्टीप्लाई करा दो इसको 365 से. एंड देन 30 में आपने लिख देना है प्रिंट करके डेज को. यहाँ पे जो 365 है ना ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज रहेगी चाहे आप एज में 10 डालो 11 डालो 12 डालो जो भी डालो. अब मैं यहाँ F2 प्रेस करता हूँ और मैं कहता हूँ जी जो एज है वो है 15 ईयर्स. तो जो 15 ईयर्स हैं वो बेसिकली बनते हैं 5475 डेज. तो ये हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया डेज को ईयर्स को कन्वर्ट किया इनटू डेज. ये वाली बात आप लोगों को सबको समझ में आती है पहले कि हमने किया क्या है यहाँ पे और हमने क्यों किया है. समझ में आती है कि क्या किया है और किया क्यों है. व्हाट इज द रीजन मैंने ये प्रोग्राम क्यों लिखा. व्हाई आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम. जल्दी बताओ इस प्रोग्राम को लिखने की वजह. यू नो एज इन डेज ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं वेरिएबल का और कांस्टेंट का. बिकॉज वी वांट एज इन डेज. हाँ बिल्कुल. लेकिन इसको लिखने की वजह ये थी कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अब यहाँ देखो कि 365 रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोग्राम.
365 आपके प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा, आपका वेरिएबल चेंज होगा। इनपुट एज, फर्स्ट टाइम मैंने एज 15 डाली थी, अब मैंने एज 34 डाली है। अब डेज में वो चीज़ डिफरेंट आ रही है। It means that every time your program is going to multiply with the value 365, that 365 remains there. आपका 365 वहीं रहेगा। So that's why मैंने एक definition दी थी, constant is a value that does not change during program execution. अब आप लिख सकते हो example of constant, example of constant, और उसको आप लिख सकते हो let's suppose days in a year, और उसको आप लिख सकते हो 365। जल्दी जल्दी से मुझे एग्जाम्पल्स बताओ आप सब कि कांस्टेंट की और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट की एग्जाम्पल्स में आ सकती हैं। सर पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू, वेरी गुड। और भाई, और बताओ, और बताओ। मंथ्स इन सर एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो वो कांस्टेंट है। वो भी कांस्टेंट है। उसके अलावा नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, यहाँ पे कशिश थोड़ा सा इशू आ सकता है कि वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन समटाइम इट हैपेंस, अगर हम कैलेंडर में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो जो वीक्स होते हैं वो 5 भी हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। सर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। हाँ, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7 होते हैं, ये बात ठीक है। और उसके अलावा, और इसके अलावा आवर्स इन अ डे, हाँ अब देखो ना, अब आने शुरू हुए रिस्पॉन्सेस। आवर्स इन अ डे, हाँ ये सही है, 24 आवर इन अ डे होते हैं, ये बात भी सही है। और कुछ, हाँ जी, नंबर ऑफ, हाँ ये तो हो गया। अब इसके बाद बताओ, आवर्स इन अ डे हो गया, और जल्दी सोचो भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, दिमाग को चलाओगे तो दिमाग काम करेगा ना। अफान, अयान साहब और मलिक साहब, जल्दी बताओ। मोहम्मद मिर्जा, मिर्जा साहब कौन है ये? अफान मिर्जा, सफ़ी सनेहा, जवार तहा वसी, ठीक है। और रिस्पॉन्सेस प्लीज, आप लोगों के कोई रिस्पॉन्सेस। तो ये जो हमारे पास सारी चीजें हैं, ये हमने डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेकंड्स। हाँ देखो ना, ये आ गया ना, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मिनट आ गया, ठीक है ना। और ये भी सही है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मिनट आ गया, वेरी गुड। और नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर, ये भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द कांस्टेंट। अगर मैं एक सवाल पेपर में आता है तुमसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सिलेक्शन, 2-2 मार्क का सवाल आया हुआ है कि सीक्वेंस क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से अगर मैं ये सवाल पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड सिलेक्शन, how you are going to tell this, what is the difference between sequence and selection। अब आप इसका क्या बताएंगे, ये क्या होता है? सीक्वेंस इन दी ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन, सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, सही बताया आपने। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखो, 10 20 30 में से आपको क्या लगता है कि इनमें से किसी भी एक चीज को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ? Like 10 input age 20 days is equals to age into 365 30 parent days. Do you think that any of the line I'm going to jumble or shuffle over here? अगर करूंगा तो बात बनेगी? नहीं सर, ऑर्डर फिर बिगड़ जाएगा। मतलब बिगड़ भी जाएगा, साथ साथ चलेगा ही नहीं ना। मैं 30 प्रिंट चलेगा डेज नहीं सर, लिखता हूँ तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी। 30 प्रिंट डेज लिखता हूँ तो डेज प्रिंट करेगा, तो डेज को ढूंढेगा, डेज में है क्या, डेज का तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो इनपुट एज हो जाएगा, डेज इज इक्वल टू एज इंटू 365 और प्रिंट डेज। इसमें किसी भी सूरत में किसी भी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन तो आप लोगों ने अच्छी बताई, आपके पास लिखी हुई होंगी। तो सीक्वेंस इज द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन, और उसकी एग्जाम्पल आप ये 3 लाइनें दे सकते हो जो ऊपर लिखी हुई हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस इज 10 इनपुट एज, डेज इज इक्वल टू एज इंटू 365 और प्रिंट डेज।
तो ये आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर आपको बताना होता है डिसाइड्स द पाथ टू गो। अब उसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अच्छा इसमें जो कुछ आपको प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिथम्स आपको पढ़ाए जाते हैं, एल्गोरिथम में बस इतना सा फर्क होता है कि आप लाइन नंबर नहीं लिखते हो, वरना चीजें यही चल रही होती हैं। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अच्छा मैं इसको सेव कर लेता हूँ F4 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज के नाम से। अब मैं न्यू करके CLS करता हूँ और मैं आपको सबसे पहले तो एक मैं कॉन्सेप्ट आपको, अच्छा चलो ठीक है, सीक्वेंस की बात, सिलेक्शन की बात हो रही है तो मैं इफ का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ इनपुट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, लेकिन मुझे लाइन नंबर लिखनी होगी तो मैं यहाँ लिखूंगा 10, ऑल्टर आई इनपुट और ए 20 पे मैं लिखता हूँ इफ ए ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव एल्स प्रिंट नेगेटिव। तो ये अगर मैं लिखता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, तो मैंने यहाँ डाला 8, मेरे पास लिखा हुआ आया पॉजिटिव, और फिर मैंने दोबारा F2 किया और मैंने डाला यहाँ पे 5, तो यहाँ पे नेगेटिव आया। ये बात किस किस को समझ में आई कि मैंने क्या किया, क्या हुआ और क्या आया, ये बताऊंगा। सर इसमें 2 पाथ्स प्रोवाइड कर दिए, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं है तो सर वो नेगेटिव प्रिंट करेगा, और अगर नेगेटिव नहीं तो सर वो तो पॉजिटिव ही प्रिंट करेगा। हाँ, जैसे हम सूडो कोड में लिखते थे थोड़ा सा हम इंडेंटेशन वगैरह दे के लिखते थे, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग में ये इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं तुम्हें एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, आपको मिल जाएगी वेबसाइट कंपाइल ऑनलाइन के नाम से। कंपाइल ऑनलाइन अगर आप लिखो तो मैं जो कुछ लिख रहा हूँ आप भी साथ साथ वहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं स्क्रीन अगर आपसे शेयर करूँ, कंपाइल ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाओगे। ये जो तुम्हारे पास बेसिक है ना, ये सिर्फ इनिशियल पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ा दिया, समझा दिया आपने। असल जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे सिलेबस में कहा गया है कि अगर आप पढ़ाएं तो किससे पढ़ाएं, तो वह है पाइथन। क्योंकि मैंने बेसिक में थोड़ा सा इसलिए बताया आपको कि यार आपको समझने में आसानी हो कि हाँ भाई किस किस तरह से चीजें होती है, कि बेसिक कुछ हद तक आपके पास मिलती जुलती है आपके एल्गोरिथम से। अब मैं जो चीज करने जा रहा हूँ दैट इज टू शो यू आप प्रोग्राम इन पाइथन। तो पाइथन से आपको एक आइडिया थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा अगर आप यहाँ देखो। और फिर हम आ गए यहाँ पे कंपाइल ऑनलाइन पे। कंपाइल ऑनलाइन आपके सामने अब यहाँ पे शेयर हो रही होगी, तो यहाँ पर आ गए और हमने इसको यहाँ पे शेयर कर दिया। आ रही कंपाइल ऑनलाइन आपके सामने आ रही है? मुझे जरा माइक पे बता दोगे कि मेरे सामने मीट नहीं है। कंपाइल ऑनलाइन आपके सामने आ रहा है एक जी सर आ रहा है। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके। तो जैसे ये तो एक सिंबल उसने बस प्रिंट और ब्रैकेट में लिख दिया, रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ये पाइथन। अब एक्चुअल जो इसी चीज को जो मैं अभी मैंने इफ देन एल्स वाला काम किया, अब मैं यहाँ करता हूँ। अच्छा एक फर्क है, वहां पर जब मैं इनपुट लिख रहा था मैं 10 लिख रहा था, इनपुट लिख रहा था, यहाँ पर मुझे इस तरह से लिखना होगा a इज इक्वल टू इंटीजर। आप लोगों को डाटा टाइप पढ़ा दी गई है, ठीक है। इंटीजर इनपुट, पाइथन में ना आपको डाटा टाइप के बारे में बताना पड़ता है कि भाई ये डाटा टाइप क्या है। अब जो मैं देने जा रहा हूँ वो एक इंटीजर है। इनपुट मैंने लिखा इंटर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट सपोज इंटर इंटर नहीं लिखते हम पर बस लिख देते हैं इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। और ये मैंने 2 ब्रैकेट खोले थे और मैं 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनपुट और ये वाला। तो ये तो हो गया आपका एक लाइन इनपुट की। अब यही काम जो इफ वाला था वो देखो यहाँ पे कैसे होगा। मैं लिखता हूँ इफ ए ग्रेटर देन 0, कलर चेंज हो रहा है, कॉलन या कॉलन लगता है, इंटर करूंगा तो तुम देखो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गई। ये भी चीज बड़ी काम की है। तुम्हारे पास सवाल पूछा जाता है जब आप पेपर 2 देते हो कि भाई आप कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ योर डिजाइन। अगर आपने पास पेपर पढ़ा हो तो कमेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ योर डिजाइन में एक बात ये आती है कि आपने इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया है अपने पास, सो दैट योर द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम इज गुड, कि आपकी विजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम गुड हो जाए। मैंने जब इंटर किया ना तो ऑटोमेटिकली ये मुझे एक टैब आगे ले आया, ऑटोमेटिकली एक टैब आगे ले आया, मैंने खुद से नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली आपके प्रोग्राम की
प्रेजेंटेशन को बेहतर करती है, सो दैट इजियर हो जाए आपके लिए कि हाँ भाई प्रोग्राम में कौन सी चीज क्या काम कर रही है। अब ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, लेकिन देखो वहां पर मैंने एक ही लाइन में सब कुछ लिखा था, यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एंटर, एंटर तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंटर नंबर इज पॉजिटिव, या मैं पॉजिटिव कोई भी मैसेज लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ भाई ये मैसेज आ गया पॉजिटिव का, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे मुझे एल्स लिखना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं चला तो ये चला, एल्स आ गया। और अगेन मैं ऊपर आके ये प्रिंट पॉजिटिव वाली लाइन को कॉपी करता हूँ। मुझे यहाँ पे ना इसमें एक मसला मसला तो नहीं कहोगे, इसके ना तुम्हारे पास दो वर्जन है पाइथन के, एक 2.7 है, एक 3.4 है। एक वर्जन में वो इन्वर्टेड कॉमा मांगता है, एक में नहीं मांगता। हम यहाँ दोनों में से डाल के चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला काम कर रहा है। तो मैंने ये लिखा प्रिंट पॉजिटिव, और यहाँ मैं लिखूंगा नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने नेगेटिव। तो जब मैं ये लिख चुका हूँ तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझसे कह रहा है यार एक नंबर दो। ठीक है, तो मैंने नंबर दिया 9, तो उसने कहा भाई पॉजिटिव है। अब मैं दोबारा अगर इसको करूं तो मैं इसको दोबारा भी कर लेता हूँ, और मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब आ रहा है इंटर अ नंबर, और मैं लिख देता हूँ -5 या 4, कुछ भी लिख देता हूँ। अब वो कह रहा है स्मेल्स क्यों नहीं काम कर रहा, स्मेल्स काम करना चाहिए। अच्छा जी, -3 नेगेटिव, अब काम कर गया। तो ऐसा हो जाता है कभी भी कंपाइल ऑनलाइन में रन टाइम एरर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गड़बड़ हुई हो, रन टाइम एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा तो ये आया नेगेटिव, इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है, और इंडेंटेशन वगैरह भी सही है, सारी चीजें हैं। क्या ये वाली बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई जो मैंने बताई? जी सर। आ गई। अच्छा जी, तो अफान आप भी बताओ बेटा, माइक ऑन करके जरा अच्छी अच्छी आवाजें सुनाओ अपनी। अफान, अनम, अयान, कशिश, मलिक साहब, तारिम, मिर्जा, सफ़ी, नेहा, रयान तो बता चुके हैं, रयान ही एक्टिव ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी जवाद और तहा और वसी। हाँ भाई। अच्छा, माइक किसी का काम नहीं कर रहा, हैंड फ्री सबके पास होगी, रात में गाने वाने सब सुनते होगे आराम से बैठ के, आवाज़ अभी किसी की नहीं आ रही है। तो ठीक है जनाब, तो बात जो हो रही है यहाँ पे वो ये हो रही है कि आपने जितना मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया, तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि देखो हमने आज की जो बात की अभी तक की, वो ये की कि आप जो भी आपके पास एल्गोरिथम होता है उसको आप इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड लिख सकते हो। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड ये होता है, अभी मैं यहाँ पर ये दो काम भी और कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सूडो कोड होता है इज अ वे टू राइट योर प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट, आप उसको सूडो कोड कहते हो। फिर जब आप उसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट या ऑपरेटर्स के लिखते हो, तो फिर आपके पास वो एल्गोरिथम बन जाता है। और जब आप उसको विद स्पेसिफिक रूल, सारे रूल्स फॉलो करते हुए लिखते हो, तो फिर वो आपका बन जाता है कोडिंग। तो मैं आपको अभी एक पेज शो करने जा रहा हूँ, वहां से आप देखोगे कि वो किस तरह से काम करता है। शेयरिंग। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब आपके सामने देखो स्क्रीन आ रही है। क्या अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई हाँ एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, और प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये चीज़ आपको समझ में आई आज? अभी तक की जो मैंने जितनी बात की है, मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट दिया है कि आप एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो, उस सिंपल प्रोग्राम को आप किस तरह किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। फिर हमने थोड़ी सी बात की थी कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम करना होता है तो हम उस प्रोग्राम को थ्रू इनपुट प्रोसेस और आउटपुट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी एल्गोरिथम लिखने के लिए जाते हो तो आप इस बात को इंश्योर करते हो कि आप जो कुछ लिख रहे होते हो वो सब का सब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन चीज़ों के ऊपर चल रहा होता है। फिर हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा कि इफ देन एल्स हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इफ देन एल्स को भी यूज़ करके देखा, और फिर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम आया। अब तक जितना कुछ पढ़ाया गया, कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया? ऑनेस्टली बता दो मुझे।
ठीक है, तो ये बात तो हो गई। ये इनिशियली इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया था कि ताकि तुम्हारी बेस स्ट्रांग हो, तो कम से कम फिर आके तुम इन चीजों के ऊपर बढ़ो। तो ये तो मैंने एक चीज तुम्हें बता दी। अब जब एल्गोरिथम जब किए जाते हैं तो तुम्हारे पास ज्यादातर जो एल्गोरिथम है ना, वो दो चीजों पे बेस कर रहा है। एक तो है आपके कंडीशंस, जो इफ देन एल्स हो जाता है, और ये हो जाता है केस ऑफ, और दूसरी चीज है लूप। केस ऑफ लूप अगर आप पक्के कर लेते हो ना, तो फिर आप एल्गोरिथम में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी तो मैंने इनिशियली इफ देन एल्स की आपको एक छोटी सी चीज बताई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अच्छा, जितना कुछ मैं ये लिखवा रहा हूँ इसको आप अपने पास लिख लो। लिखा है या नहीं लिखा ये बताओ पहले, लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो इसको लिख लो अभी। आई कैन गिव यू 2 3 4 मिनट्स कि ये जो सूडो कोड एल्गोरिथम और कोडिंग वाला मैंने बताया है ना, ये अपने पास लिख लो आप। आप लोगों ने लिखा हुआ है या आप लोग लिख रहे हो, ये बता दो मुझे। सर लिख रहा हूँ। लिख लो। एल्गोरिथम आप लिख सकते हो कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करते हो उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को, तो आप उसको एल्गोरिथम कहते हो। रिटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर 9, चैप्टर 10, क्योंकि वो वहीं से शुरू हुआ था, जिसमें आपसे जो जो चीजें कही गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये आती हैं चीजें। असाइनमेंट क्या होता है? व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट क्या चीज होती है? असाइनमेंट क्या होता है? सर कोई वैल्यू असाइन कर देना। उसकी एग्जाम्पल। उसकी एग्जाम्पल क्या होती है? यही सर, एक्स है तो उसमें 5 या 6 नंबर मतलब कर देना। हाँ सही है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल चैट बॉक्स पे लिखा है A = 6। आपकी क्लास है 11J, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 11J, और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे पता चले थे वो थे 28। तो मैंने लिख दिया भाई 11J = 28। इसका मतलब है 11J में 28 स्टूडेंट्स हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड असाइनमेंट। इस चीज को आप असाइनमेंट कहते हो, क्योंकि ये चीजें मैच करने के लिए भी आ जाती हैं, 1 से 2 मार्क्स के लिए लिखने भी आ जाती हैं। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपको एक एक चीज करवा दूं। अब यहाँ पर अगर हम चैप्टर नंबर 10 में जाएं, तो चैप्टर नंबर 10 में आपको इसके बारे में बताया गया है कि जब आप सूडो कोड लिखते हो तो सूडो कोड ज़ाहिर है आप क्लियर और प्रिसाइज वे के अंदर सॉल्यूशन लिख रहे होते हो। स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है सूडो कोड? आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है। यहाँ पे सूडो कोड में आप जो ऑब्जेक्टिव है हम इसको थ्रू आउट लेके चलेंगे अभी 1 2 दिन में। होपफुली सारी चीजें बेसिक्स में आपको बता दूंगा ना। होपफुली अगर आपको ठीक समझ में आती है तो कल या परसों से ही हम एल्गोरिथम्स करना शुरू कर देंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वी विल स्पेंड अराउंड 2 3 क्लासेस ऑन एल्गोरिथम्स, तो आपको एल्गोरिथम्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। फिर हम फ्लो एरेस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इस चीज को समझो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कि सूडो कोड, जैसे देख रहा है कि सूडो कोड के अंदर आपको असाइनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास अगली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इफ देन एल्स या केस। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फॉर व्हाइल और रिपीट। अच्छा, एक बात याद रखना कि इनपुट करने के लिए आप रीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक मार्क का सवाल आया था, 1 मार्क का सवाल आया था कि इनपुट के लिए दूसरी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या यूज करते हो, तो आप रीड करते हो। ये अपने पास लिख लेना, ये पास पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू इनपुट स्टेटमेंट। तो फिर बच्चों ने नहीं लिखा तो उनको पता ही नहीं था। एंड व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू आउटपुट, तो वो प्रिंट होता है।
अच्छा, फिर वो टोटलिंग और सम जो काउंट वाला है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है, यानी ये चैप्टर आपका टोटल इसी चीज पे फोकस कर रहा है। तो क्योंकि हमें एक नंबर भी कहीं पे लूज नहीं करना, तो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट असाइनमेंट। तो एक तो ये देखो कह रहा है कि भाई असाइनमेंट क्या होता है कि वैल्यूज आर असाइन, यहाँ लिखा हुआ है देखो, वैल्यूज आर असाइन टू एन आइटम वेरिएबल, यानी वेरिएबल जैसे ए है, यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट इज असाइन द वैल्यू, यानी जो ए लिखा है उस ए को असाइन की जा रही है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट। राइट साइड पे अगर 5 है तो वो 5 असाइन किया जा रहा है। और एक्सप्रेशन ऑन द राइट कैन बी अ सिंगल वैल्यू, यानी अगर आपने 5 लिखा है वो एक सिंगल वैल्यू हो सकती है। कंबाइन विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उसमें ऐसे भी लिख सकते हो आप 5+7, ऐसा भी हो सकता है कि 5+7 करके वो ए में चला जाए। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है। उसकी उसने एग्जाम्पल दी है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर तो आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर और ग्रुप होते हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल दी सूडो कोड की जिसमें उसने कहा कि कॉस्ट एरो 10, इसका मतलब है कि कॉस्ट की वैल्यू 10 है, कॉस्ट हैज अ वैल्यू 10। फिर उसने लिखा प्राइस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। मुझे जरा जल्दी से बताओ, बल्कि अब तो लिखा हुआ है, मैं क्या पूछूं तुमसे। प्राइस हैज द वैल्यू 20, क्योंकि उसने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्राइस हैज अ वैल्यू 20 आ गई। Now the next is price multiplied by 0.12. So the value you have for the price is 20. प्राइस की वैल्यू तुम्हारे पास ऊपर 20 है, 20 को आप मल्टीप्लाई बाय करा रहे हो 0.12 से। 0.12 12 होता है, 12 को 10 से कराओ 12 आ जाएगा, 2 से कराओगे 24, तो 2.4 आपके पास यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। फिर आपने सेलिंग प्राइस के लिए प्राइस प्लस टैक्स किया है, प्राइस में 20 आ रहा था, टैक्स में 2.4 आ रहा है, तो 22.4 आपके पास यहाँ सेलिंग प्राइस में आ जाएगा। जेंडर में आप इन्वर्टेड कॉमा में एम लिख रहे हो, क्योंकि कैरेक्टर जो वो होता है ना, जो सिंगल कैरेक्टर, वो आप सिंगल उसमें डालते हो, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो। तो जेंडर हैज अ वैल्यू एम है और चूजन हैज अ वैल्यू फॉल्स है। ज्यादा तेजी से तो नहीं पढ़ा दिया, समझ में आई ये वाली बात? जी सर। ठीक है जी। बाकी बताएं हजरत, अगर नाश्ता वाश्ता हो गया हो बाकी लोगों का तो कुछ बोल भी दें। नफान हैंड फ्री काम कर रही है तुम्हारी ना? कशिश, मलिक साहब, मलिक साहब बिल्कुल खामोश हैं आज। तारिम ने सिर्फ एक बार कुछ कहा था। मिर्जा साहब कोई आवाज नहीं है अब तक। सनेहा एक रिस्पांस देने के बाद गायब। और सनी साहब कोई जवाब नहीं आ रहा। और ताहा और वसी कहाँ गए भाई? कशिश का जवाब आ गया, अनम का आ गया, मोहम्मद मसूद का आ गया। बेटा ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहे हैं, सारे रिस्पॉन्सेज सब चीज़ें जो है ना मेरे पास रिकॉर्ड हो रही हैं, जिन जिन के जवाब नहीं आ रहे। सो अब ये वाला काम तो आपने कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू? एक छोटा सा आपने काम करना है, यहाँ आ जाओ। यू कुड सी दैट दिस इज एक्टिविटी 10.1। ये आप जल्दी से करो और मुझे ईमेल करो। व्हाट वैल्यू विल बी द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 6, छोटा सा असाइनमेंट है 5 मार्क का। ये 10.1 है, जल्दी से अपनी कॉपी पे करो, तस्वीर खींचो, ईमेल में अपनी दे रहा हूँ। व्हाट वैल्यूज विल द फॉलोइंग वेरिएबल हैव आफ्टर द असाइनमेंट हैव बीन कंप्लीट, जैसे पीछे दिया हुआ था ना। सर फेयर में तो करें? हाँ, ये फेयर मतलब अपने जो स्कूल की कॉपी उसमें करो, एक्टिविटी 10.1 करके और मुझे ईमेल कर दो। ऐसे करो, अमाउंट 100, टोटल प्राइस अमाउंट इंटू 3.5 डिस्काउंट। ये जो वैल्यूज होंगी, जैसे ऊपर ऊपर से आप ले सकते हो, जैसे अमाउंट इज 100 लिखा हुआ है, जैसे ऊपर कॉस्ट एरो 10 लिखा हुआ था तो आप कह रहे थे कॉस्ट हैज अ वैल्यू 10। अगर यहाँ नीचे अमाउंट एरो 100 लिखा हुआ है तो आप बोलोगे अमाउंट एज अ वैल्यू 100। तो ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। अब जो नीचे के 5 रह गए वो 5 आपका असाइनमेंट है, छोटा सा असाइनमेंट है। एक्टिविटी 10.1 सवाल लिखो, ये लिखो और उसके आगे उसकी स्टेटमेंट लिखो। ये वाला काम करो आप। डू दिस नाउ।
Email has been shared on chat box tchr.5166@beacon9.edu.pk। इस पे आपने ये काम करके मुझे भेजना है और फिर इसके बाद ये काम आप करोगे। और एक छोटा सा टास्क मैं आपको और देता हूँ। और एक छोटा सा साइंस असाइनमेंट वो ये होगा कि राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ दैट नंबर्स। 3 नंबर्स लोगे आप, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम that input 3 numbers and output the sum and average of these numbers। फिर इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे। write an algorithm that input 3 numbers and outputs the greatest one। तो ये 2 काम आपने करने हैं। ये वाला तो आप अभी हाथ के हाथ भेज दोगे क्योंकि इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। There are 2 algorithms that you are going to send me before the next class। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको आसानी दे सकता हूँ। यानी कल हमारी नेक्स्ट क्लास है तो उससे पहले आप ये 2 चीजें दोगे। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 अलग-अलग सवाल है। ये समझ लो क्वेश्चन 1 पार्ट ए पार्ट बी। इसमें आपने 3 नंबर्स का इनपुट करना है, सम करना है, एवरेज करना है और अगले सवाल में आपने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इनपुट 3 नंबर्स में से। इंस्ट्रक्शन क्लियर है आप लोगों के लिए? असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? सही 10.1 तो अभी भेज देना आपको। ये तो अभी आएगा। ये तो एक तरीके से क्लास टास्क है। ये 5 मार्क का अलग है। वो जो दोनों हैं वो 5-5 मार्क के 2 हैं जो एज एन होम असाइनमेंट जाएंगे। ये तो अभी छोटी सी चीज है यार, इसमें कौन सी कोई इतनी बात है। तो फटाफट लिखो और तस्वीर खींच के ईमेल कर दो। क्लियर है मैंने क्या क्या कहा है? 10.1 अभी भेजनी है। बाकी तो जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स पे हैं, अपने पास उसको उठा के कॉपी शॉपी कर लो। ये 2 आपने रिटर्न करने के बाद मुझे कल क्लास से पहले पहले करने हैं। मैं कल सबसे पहले मेल खोल के चेक करूंगा और फिर बताऊंगा किसने भेजे किसने नहीं भेजे। सही? क्लियर है भाई? सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? ठीक है, तो क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और ये टास्क आप मुझे अभी भेज दो। द नेक्स्ट 2 टास्क यू कैन सेंड इट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। इतना मैं आपको टाइम दे देता हूँ। ईमेल सेंड। ठीक है रयान, आई विल चेक दिस आउट और टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।